بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم فقنا في الدين اللهم فقنا في الدين اللهم فقنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب کو قرآن کلاس میں خوش آمدید. اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت قبول فرمائے. اور نیا سبق شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة ولكن كره الله بآسهم لثبتهم وقيل اقعدوا مع القائدين لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا ولآذوا ودعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن تصيبك حسنة تسوهم وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل يتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا أحد الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. صدق اللہ العظیم. ولو ارادوا الخروج اگر نکلنے کا ارادہ کرتے لعدوا تو یقیناً وہ عدو تیاری کرتے لہو اس کے لیے عدتاً تیاری کچھ سامان ضرور تیار کرتے. ولیکن مگر قاری اللہ نے ناپسند کیا انبعاثہم ان کا نکلنا ان کے اٹھنے کو ناپسند کیا اللہ نے. واستبتہم اور انہیں سست کر دیا. وقیل اقعدوا اور کہا گیا کہ بیٹھے رہو مع القاعدین بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ. لو خرجوا فیکم اگر وہ نکلتے فیکم تمہارے ساتھ ما زادکم تو نہیں وہ کرتے زیادتی مگر الا خبالہ کسی یعنی کہ خرابی میں زیادتی کرتے. ولا اودعوا خلالکم اور وہ تمہارے درمیان گھوڑے دوڑاتے. یبغونکم تلاش کرتے تم میں فتنہ تلاش کرتے کے لیے اپنی تگ و دو کرتے گھوڑے دوڑاتے. وفیکم سمعون اور تم میں سمعون کان لگا کر سننے والے ہیں لہم ان کے لیے. تم میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کی بات کان لگا کر سنتے ہیں. وفیکم سمعون لہم واللہ علیم اللہ خوب واقف ہے ظالموں سے. لقد ابتغوا البتہ یقیناً تبغوا الفتنة من قبل اس سے پہلے بھی وہ تلاش کر چکے ہیں یا بھاگ دوڑ کر جو فتنے میں ڈالنا
तुम्हें डालना चाहा मिन क़ब्ल फ़क़ल्लबू, और उन्होंने क़ल्लबू लकल उमूरा, और उन्होंने उलट पुलट कर दिए लकल उमूरा आपके मामला, तुम्हारे मामलात, हत्ता जाअ अल हक़, या यहाँ तक के जा अल हक़, हक़ आ गया, व ज़हर अमरुल्लाहि, और ज़हरा और गालिब हो गया, अमर अल्लाह का, अल्लाह का हुक्म, वहुम कारिहून, और अगरचे वो उसे नापसंद करने वाले थे। वमिनहुम, और उनमें से मन यक़ूलु ज़ल्ली, कोई ऐसा भी है जो कहता है ज़ल्ली वला तफ्तिनी, आप मुझे इजाज़त दे दीजिए और मुझे फितना में ना डालिए। अला फिल फितनती, खबरदार, फिल फितनती, फितने में साक़तू, तुम पड़ ही गए हो, साक़तू यानी तुम फितने में पड़े हुए ही हो। व इन जहन्नमा लमुहीततुन बिल काफिरिन, और बेशक जहन्नुम लमुहीततुन, यकीनन यकीनन मुहीततुन, घेरने वाली है, बिल काफिरिन, काफिरों को। इन तुसिब का, अगर तुम्हें पहुंचती है, हसनतुन यानी हासिल होती है तुम्हें कोई भलाई, तसूहुम, तो उन्हें बुरी लगती है। व इन तुसिब का, और अगर पहुंचती है आपको मुसीबतुन, कोई मुसीबत, यकूलू, वो तो कहते हैं, कद अखज़ना अमरना, यकीनन अखज़ना अमरना, हमने बना लिया था, अपने मामले को दुरुस्त कर लिया था, मिन क़ब्ल, इससे पहले, व तवल्लौ, और वो मुंह फेरते हैं, वहुम फारिहून, इस हालत में कि वो खुश होते हैं। कुल लन युसीबना, कह दीजिए, लन युसीबना, हरगिज नहीं पहुंचती हमें भी कोई भी मुसीबत या कोई खचाई, इल्ला मा कतबल्लाहु लना, मगर ये कि मा कतब, जो अल्लाह अल कतबल्लाहु, लिख दी अल्लाह ने, लना, हमारे लिए, हुआ मौलाना, वही हमारा मौला है, व अलल्लाहि, और अल्लाह ही पर, फल यतवक्कल मुमिनून, चाहिए कि भरोसा करें मोमिनीन। कुल, कह दीजिए, हल तरब्बसूना, नहीं है हम इंतजार करते, बिना, हमारे मामले की, इल्ला, मगर, इख्दा उनसयैन, नहीं तुम इंतजार करे हमारे मामले, मगर एक दो में से, दो अच्छाइयों में से एक ही है, इहदा, एक ही, अल हुस्नैन, दो भलाई में से एक का, नहनु, और हम, नतरब्बसु, हम इंतजार करें, बिकुम, उनमें से, बिकुम, तुम्हारे लिए, अन युसीबकुमुल्लाहु, के पहुंचाए तुम्हें अल्लाह, तुम्हें पहुंचाए अल्लाह, भी अजाबिन, कोई अजाब, मिन इंद, अपने पास से, औ भी अज़न, या हमारे हाथों से, फतरब्बसू, पर तुम इंतजार करो, इन्ना माकुम मुतरब्बिसून, और हम भी तुम्हारे साथ मुतरब्बिसून, इंतजार करने वालों में से, इंतजार करने वाले ही हैं। तो जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं कि सूरत जो है वो नाजिल, ये ग़ज़वा तबूक के बारे में, और पिछले जो हमने पढ़ा उसमें क्या, अल्लाह तबारक व तआला ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि हर कोई निकले, किसी को भी, इसमें किसी को मुस्तस्ना से नहीं, सिवाय कुछ चीज़ें बाकी आगे आएंगी, उनके अलावा किसी को भी इसमें इजाज़त नहीं है कि वो ना निकले, हर किसी पे, यानी ये फ़र्ज़ कर दिया गया। तो यहाँ जैसे पिछले पढ़ा कि कुछ लोग ऐसे थे जो आपसे झूठ मूठ आके और माज़रतें करते थे, और अल्लाह के रसूल जो है उन्हें अपनी मेहरबानी से, रहमदिली से उनको इजाज़त भी दे दिया करते थे, जिस पे अल्लाह तबारक ने कहा भी कि जी क्यों आपने इनको इजाज़त दी। तो यहाँ ये बता रहा है कि वलाउ अरादू, अल्लाह ताला उनसे मुसलमानों को ये तसल्ली दी जाए, वलाउ अरादुल खुरूज है, पहले तो मुनाफिक को बताया जाए कि अगर वो कुछ इरादा करते निकलने का, अगर वो इरादा करते निकलने का, तो लअद्दु लहू उद्दत, तो कोई सामान तैयार करते, इतना लंबा वो सफर में जा रहे हैं, इतना दूर का लंबा सफर है, गर्मी है, इतना, ना कोई उन्होंने अपना सामान तैयार किया, ना कोई सवारी तैयार की, अगर उनका इरादा होता तो यकीन वो कोई तैयारी करते उसके लिए, मगर हुआ ये कि वलाकिन करिहल्लाहु बसहुम फसब्बतहुम वकील खुदू मअल काइदीन, मगर अल्लाह अल्लाह ने वो उनको, वो अल्लाह को ये चीज़ पसंद ही नहीं थी कि जो शख्स अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से ना निकले, यानी बादल ने ख्वाहिश था उठना, अल्लाह को बिल्कुल पसंद है कि अपनी मर्जी से ना निकले, लोगों के कहने से, कोई दिखावा दे, कोई यानी कोई शिरकत जहाद में, शिरकत के जज्बे से बिल्कुल खाली हो, नीयत से भी खाली थे, इनके अंदर जो कोई दीन की सरबुलंदी के लिए कोई कोशिश करने की कोई ख्वाहिश ना थी। सिर्फ मुसलमानों की शर्मा शर्मी से कोई निकलना चाहे और किसी शरारत के नीयत से, तो फिर अल्लाह तबारक को ये चीज़ पसंद ही नहीं, तो अल्लाह तबारक को इनको फिर सुस्त ही कर दिया, वह सब बताऊँ, वो सब बताऊँ, वकील खुद माल कायद, उनको सुस्त कर दिया, और वो उनसे कह दिया गया, यानी कि उनको ऐसा कर दिया गया कि फिर वो पीछे रहने वालों के साथ ही तुम बैठे रहो, वकील खुद माल कायदीन, तुम बैठे रहो, कायदीन, पीछे रहने वालों, बैठने वालों के साथ। फिर अल्लाह तबारक को यहाँ मुसलमानों को ये
तसल्ली दे रहे हैं कि अगर वो चल जाते भी तो कुछ मुसलमानों को होगा ना यकीन नहीं कि जी ये इतने लोग पीछे रह जा रहे हैं, तो ये इनको जाना चाहिए था। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि इनके वलाउ खराजू फीकुम, अगर वो निकलते भी तुम्हारे साथ तो तुम्हारी इन्होंने खराबी में इज़ाफ़ा करना था। यानी तुम्हारे साथ निकल के क्योंकि तुम्हारे काम ना आते। इन्होंने जो है हर हाल में कुछ ना कुछ शरारतें करनी थी, तो बातें इधर की उधर बातें इन्होंने लगानी थी और ऐसे हरकतें पैदा करती, अफ़वाहें फैला कर कोई इस तरह की कैफ़ियत पैदा करते थे, लोगों के ज़हन ख़राब करते थे, अहले ईमान के अंदर उन्हें इंतशार बर्पा करने की साज़िश करते। इधर की बात उधर, उधर की बात उधर, मामूली बात को बढ़ा-चढ़ा कर उन्हें बयान करना था और आपस में दुश्मनी और अदावतें पैदा करते। तो इसलिए इख्तिलाफ़ पैदा करने भागते फिरते और अपनी शरारतों के ज़रिए फ़साद की आग भी भड़काते। फिर उनको तसल्ली है कि अच्छा हुआ कि ये लोग आपके साथ नहीं जा रहे। और फिर ये भी है कि वफ़ीकुम, तुम में कैसे ऐसे लोग, वफ़ीकुम सम्माऊना लहुम, और तुम में कुछ एक थे कि उनमें तुम्हारे अंदर उनके जासूस भी है। ये दूसरी बात है कि वो तुम्हारे लोग काम कान लगा के सुनने वाले हैं। यानी कुछ ऐसे सादा लोग मुसलमान भी थे जो इनकी बातें सुनते, यानी कि इनके अगर बड़े-बड़े मुनाफ़िकीन जाते तो उनकी बातें करने का भी बहुत से लोगों को फ़न आता होता है। तो जो सादा लोग मुसलमान होते हैं उनको पता भी ना होता कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, उनका मकसद क्या है। तो उनकी बातें भी गौर से सुनते, तो कान लगाते तो तुम्हें नुकसान होता। तो अल्लाह तबारक वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, अल्लाह तबारक व तआला ज़ालिमों से खूब वाकिफ़ जानता है। लक़द इब्तग़ुल फ़ितनता मिन क़ब्ल, और इससे पहले भी वो आपके साथ फ़ितना, ये फ़ितना आपका बहुत से काम ऐसे कर चुके हैं जिसमें फ़ितना फैलाना चाहा। ये तो पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने ऐसा किया है, वो हमेशा से ऐसा करते आए हैं। तो उसमें इसमें तुम्हें जब भी आप, ये मुनाफ़िक़ीन तो ऐसे हैं, जब आप मदीना मुनव्वरा आए तो आपके खिलाफ़ फ़ितना तलाश करते रहे और मामलात को बिगाड़ने में सरगर्म रहे। जब हमें पता है कि जब बदर में अल्लाह ताला ने आपको फ़तह व ग़लबा अता फ़रमाया तो उनको बहुत ही नागवार गुज़रा था ये अमल भी। अल्लाह तक कि क्यों इन्हें फ़तह नसीब हुई। इसी तरह जब ग़ज़वा उहद के मौका पर तो ये मुनाफ़िकीन जो हैं वो मैदान जंग से वापस ही आ गए थे। बहुत से तकरीबन 300 मुनाफ़िकीन रास्ते से छोड़ के आ गए थे। कितनी मुश्किलात पैदा की, तो ज़िंदगी भर उनकी हमदर्दियाँ यहूदियों के साथ रहीं और उन्हें उकसाकर मुसलमानों के खिलाफ जंग पर आमादा करते रहा करते थे कि जंग आमादा करें। इसी तरह जब ग़ज़वा बनी मुस्तलिक़ से वापसी पर उन्होंने सैयदा आयशा सिद्दीक़ा पर भी तहमत लगा दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कितने मुसलमानों को ज़हनी कौफ़ियत में मुब्तला किए रखा। हालाँकि अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की बरियत नाज़िल फ़रमाई। इस तरह उन्हें हमने पढ़ा है कि मस्जिद ज़रार उन्होंने तामीर की और उन्हें नापाक साज़िशों के लिए एक नया अड्डा बना लिया था। इस मौका के इसके बाद भी हर मौका पे बिगाड़ी कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि मक्का फ़तह हो गया और अक्सर अरब मुसलमान हो गए, जिस पर भी उनको हसरत और अफ़सोस ही होता रहा कि ऐसा क्यों हो गया। तो ये अल्लाह ताला को ना लक़द इब्तग़ुल फ़ितनता मिन क़ब्ल, इससे पहले भी ये तलाश कर फ़ितना करते रहे, मिन क़ब्ल व अक़ल्लहू लकल उमूर, और गड़बड़ करते रहे आपके कामों को बहुत ज़्यादा उन्हें बिगाड़ा भी, हत्ता यहाँ तक कि जाअल हक़, हक़ आ गया, व ज़हरा अम्रुल्लाहि, और गालिब आ गया अल्लाह का हुक्म, यानी कि मक्का फ़तह हो गया, व हुम कारिहून, हालांकि वो उन्हें नापसंद करने वाले थे। फिर ये बताया वमिनहुम मन यक़ूलु ज़ल्ली वला तफ़्तिनी, और उनमें से कोई ऐसा भी है जो कहता है कि मुझे इजाज़त दीजिए, वला तफ़, और मुझे फ़ितना में ना डालिए। ये इस तरह के लोग भी उनमें शामिल थे। और एक ख़ास तौर से ये जो आयत उतरी है, एक अ, सरदार थे उनका, उनका हाल ये थी कि वो कहते हैं उसका नाम था जद्द बिन क़ैस। उसके मुतालिक रिवायत में है कि उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर आया और अर्ज़ की कि मैं एक हुस्न परस्त आदमी हूँ, मेरी कौम के लोग मेरी इस कमज़ोरी से खूब वाकिफ़ हैं। तो औरत के मामले में मुझसे सब्र नहीं हो सकता और डरता हूँ कि कहीं मैं रोमी औरतों को देख कर मेरे कदम ना फिसल जाएँ, ताकि आप मुझे फ़ितने में ना डालें और जहाद और शिक्कत से आप मुझको माज़ूर रखें। यानी वो ये चाहता था कि किसी तरह रुक जाए, तो उसने ये ऐसे-ऐसे बहाने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, उसको कोई शर्म नहीं आई, उसने ऐसी बात की। तो अल्लाह तबारक व तआला के फिर फरमाते हैं कि वला वमिनहुम मन यक़ूलु ज़िल अला तो अला फिल फितनति सकतू, तो खबरदार, ये तो पहले ही फितना में तो पड़े हुए हैं। इनके अभी क्या, अब अल्लाह ने क्या, उन्होंने फितने में क्या डाला, पहले से ही पड़े हुए हैं। दो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने के बावजूद भी अगर जहाद में शरीक नहीं हो रहा, तो ये बहुत बड़ा फितना है, बहुत बड़ी आज़माइश है। अगर फितना पे वो अगर नहीं जा रहा, जहाज में पीछे रहना और जैसे गुरेज करना, तो बजाय खुद एक फितना है, सख्त गुनाह का काम है, जिसमें ये मुलविस हैं ही, और मरने के बाद जहन्नुम फिर उनको घेरने वाली है, जिससे फरार का कोई रास्ता उनके लिए नहीं मिलेगा। तो ये इनका हाल ये था, मुनाफ़िकीन का दो मुँह पे ये होता है, जिस तरह से अब्दुल्लाह बिन उमर बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफ़िक की मिसाल उस बकरी की सी है जो 2 गलों यानी 2 रेवड़ों के दरमियान मारी-मारी फिरती है।
کبھی اس ریوڑ میں آتی ہے، کبھی اس ریوڑ میں جاتی ہے۔ تو اس کے ان کا حال بھی یہی ہوتا ہے کہ یہ مسلمانوں کو دکھانے کے لیے شرما شرمی سے کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں، مگر اصل میں وہ ان کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اس لیے منافق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نفق سے نکلا ہے۔ نفق کہتے ہیں ہمارے عربی میں سرنگ کو، سرنگ کے دو، ایک راستہ ایک جانے کا، ایک آنے کا، نکلنے کا، تو دو دو منہ والے ہوتے ہیں۔ منافق کا مطلب دو منہ والا، یعنی وہ نہیں ہوتا جو بظاہر نظر آتا، وہ دکھانے میں کچھ اور ہوتا ہے اور پیچھے سے کچھ اور ہوتا ہے، یا کسی کے سامنے کچھ اور ہوتا ہے اور کسی کے کچھ اور ہوتا ہے۔ انہی لوگوں کے لیے ان جہنم محیطۃ بالکافرین، اور بے شک جہنم یقیناً محیطۃ گھیرنے والی ہے کافروں کو۔ اور پھر ان کی یہ یہاں پہ خاص ایک خصلت بتا دی گئی ہے کہ ان تصب کا حسنۃ تسوم، اگر آپ کو کوئی بلائی پہنچتی ہے تو انہیں بری لگتی ہے، اور ان تصب کا مصیبت، اور اگر کوئی مصیبت پہنچے تو کہتے ہیں کہ یقول قد اخذنا امرنا من قبل، ہم نے تو اپنے معاملات کو پہلے ہی درست کر لیا تھا، وَيَتَوَلَّوْا فَهُمْ فَرِحُونَ، اور اس حالت میں وہ لوٹتے ہیں کہ وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ منافق خصلتوں کو بیان کر رہا تھا کہ اہل ایمان کو کامیابی مل جائے اور کوئی علاقہ فتح کر لیں یا مال غنیمت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے، تو منافقین کو یہ کامیابی بری لگتی ہے، بہت تکلیف اور ان کو جلن ہوتی ہے۔ اہل ایمان کی کامیابی کی سن کے خبر ان کے منہ لٹک جاتے ہیں، جل بن جاتے ہیں، اور اگر اہل ایمان کو میدان جنگ میں تکلیف پہنچے، ان کو اپنے زخمیوں کی دیکھ بھال کرنا پڑے اور شہداء کی تعداد میں اضافہ ہو جائے، تو منافق بڑے خوش ہوتے ہوئے خوشی خوشی پھولے نہیں سماتے۔ پھر وہ تبصرے کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم تو پہلے ہی جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ انہیں بیوقوفوں کو ہلاکت کے گڑھے میں ڈال رہے ہیں، چنانچہ اپنے علم بہانوں کو عقل مندی اور دور اندیشی سے تعبیر کرتے ہیں، اور اپنی عیاری اور شعر و چلاکی کو گردانتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو جی، ہم نے تو پہلے سے ہی اپنے معاملات درست کر لیا تھا، حالانکہ ہم تو ان کو لوگوں کو سمجھاتے بھی رہے کہ جہاد میں نہ جاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اوروا دیں گے، ان لوگوں نے ہماری بات پر توجہ، یعنی اس طرح کی باتیں وہ کیا کرتے تھے۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے منافقوں کی خسرت پہلے ہی ہم جیسے آل عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ تبارک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض، اے لوگوں جو ایمان لائے، اس لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو کفر کیا اور اپنے بھائیوں کے بارے میں جب انہوں نے زمین میں سفر کیا، کانوا عندنا ما ماتوا وقتلوا لاجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، تو یا لڑنے والے ہوتے تو پھر وہ ہمارے پاس، اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے، تاکہ اللہ ان سے دلوں میں حسرت بنا دے، اگر جس کا بلو ذالک حسرتن فی قلوبہم واللہ یحیی و یمیت، اور اللہ ہی زندگی بخش اور موت دیتا ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ اس کو جو تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ اس طرح سورہ نساء میں ہم پڑھ چکے ہیں وَإِنَّا مِنْكُمْ لَمُبَطِّئِينَ، اور اگر تم میں کوئی ایسا بھی ہے جو ہر صورت دیر لگائے گا، اصابت فَإِنْ اصابتکم مصیبۃ قال قد انعم اللہ علیہ، پھر اگر وہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کہے گا بے شک اس نے اللہ نے مجھ پر انعام فرمایا، اذ لم اکن معهم شہید، اور جب کہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا۔ ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اگر کوئی مشکل ہو یا کوئی، تو پھر ان کو یہ ہوتا ہے کہ دیکھو جی، ہم تو ساتھ گئے نہیں، اللہ نے ہمیں بڑا کرم فرمایا۔ یہ ان کی ہمیشہ سے خصلت رہی ہے۔ حالانکہ مسلمان کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ یقول لن یصیبنا، کہہ دیجئے ہرگز نہیں پہنچتی ہمیں کوئی مصیبت، ما ما کتب اللہ لنا، جو کچھ لکھ دی اللہ نے ہمارے لیے، ہوا مولانا، وہی ہمارا مولا ہے۔ یعنی یہ منافقین کے جواب میں مسلمانوں کو صبر و ثبات کیے، اسے فرمایا جائے، کیونکہ انسان کو جب یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کی طرف سے مقدر میں لکھا ہوا ہر صورت میں پورا ہونا ہے، اور ہمارا ایمان بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارا قسمت میں لکھا ہے وہ پورا ہوگا، جو بھی مصیبت یا بلائی میں پہنچتی ہے اسی تقدیر الہی کی حصہ ہے، تو انسان کے لیے پھر مصیبت کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے اور اس کے حوصلے میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارا ایمان پکا اس بات پہ ہونا چاہیے، جو ہمیں مصیبت پہنچے گی، جو ہمیں بلائی پہنچے گی، وہ اللہ ہی کی طرف سے، کہ ہمارا اس میں کوئی کمال ہے نہیں۔ ہاں، ہمارے گناہوں کی برداشت میں کچھ نہ کچھ ہمیں مشکلیں آتی ہیں، تو اس پہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، صبر کرتے رہنا چاہیے۔ جیسے ہم نے آل عمران میں پڑھا قُل لَوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ، کہہ دیجیے اگر تو اپنے گھروں میں بھی ہوتے تب بھی جن لوگوں کو قتل ہونا لکھا جا چکا ہے، اپنے لیٹنے کی جگہوں کی طرف ضرور نکل آتے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنی جگہ پہ پہنچا دیتا۔ اسی طرح سورہ حدید میں ہم پڑھیں گے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب، یعنی کوئی بھی مصیبت نہ زمین پر پہنچتی ہے نہ تمہارے جانوں پر، مگر ایک کتاب میں ہے، من قبل ان نبرأہا، ان
अन नब्रअहा, और इससे पहले ही अल्लाह ताला ने, यानी जो पहले हम पैदा कर दे, इससे पहले कि हम उसे पैदा कर दें। इन्न ज़ालिका अलल्लाहि यसीर, अल्लाह ताला के लिए ये बहुत आसान है। लिकई ला तअसौ अला मा फातकुम, ताकि तुम उस पर गम ना करो जो तुम्हारे हाथ से निकल गया। वला तफरहू बिमा आताकुम, और तुम ना इतराओ उस पर जो उसने अता किया तुम्हें। वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर, और अल्लाह ताला तकब्बुर करने वाले, बहुत फख्र करने वाले से मोहब्बत नहीं रखता है। अल्लाह तबारक व तआला में मुसीबत, यानी उन्हें महबूब नहीं रखता। तो अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, उसने पहले से हमारे लिए जो कुछ भी है अल्लाह ने हमारे लिए पहले से लिख के रखा है। अपने इल्म के मुताबिक अल्लाह ने पहले ही लिखा हुआ है कि ऐसा होगा और ऐसा होना है। इस तरह सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं कि एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि मैं पीछे सवार था, आपने फरमाया, ए छोटे लड़के, यकीन मैं तुझे कुछ बातें सिखला रहा हूँ, बगौर सुनो। अल्लाह ताला की हिफाज़त करो, वो तेरी हिफाज़त करेगा। तू अल्लाह की हिफाज़त कर, तो उस पर तू अपने रूबरू पाएगा। तू जब सवाल करे और जब मदद तलब करे तो अल्लाह ताला ही से मदद माँगो। और इस हकीकत को जान लो कि अगर सारी उम्मत तुझे कुछ नफ़ा पहुँचाने के जमा हो जाए, तो तुझे सिर्फ़ वही नफ़ा पहुँचेगा जो अल्लाह ने तेरे लिए मुक़द्दर कर दिया है। और अगर तमाम उम्मत तुझे कुछ नुकसान पहुँचाने के लिए मुत्तहिद हो जाए, तो तुझे इतना ही ज़रर पहुँचा सकेंगे जो अल्लाह ताला ने तेरे लिए लिख दिया है। कलमों को उठा लिया गया और सहीफ़े खुश्क हो चुके हैं। यानी ये अल्लाह तबारक व तआला हमारा ईमान होना चाहिए कि जो अगर अल्लाह तबारक व तआला अगर मुझे कोई नफ़ा पहुँचाना चाहेगा, तो दुनिया की कोई ताकत वो रोक नहीं सकती। और अगर वो मुझे ज़रर को अल्लाह तबारक व तआला सारी दुनिया मिल जाए तो मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। अल्लाह तबारक व तआला को मंज़ूर ना, अल्लाह ने हमारी किस्मत में ना लिखा हुआ। इसी तरह हमें कोई ना मुसीबत, ना कोई बलाई, सिवाय उसके अल्लाह ताला के इज़्न से ही होती है, उसके अलावा किसी का ये इसमें कोई इख्तियार है नहीं। फिर ये कहा जाए, कुल हल तरब्बसून बिना मिन अहदिल हुसैन, कह दीजिए कि हम तुम क्या तुम इंतज़ार कर रहे हो हमारे बारे में कि दो दो हसन भलाइयों में से, यानी क्या तुम हमारे पास दो बेहतरीन चीज़ों में से एक के सिवा किसी का इंतज़ार करते हो? यानी हमें जो पहुँचेगी, हमें जो मुसीबत पहुँचेगी, कोई भी जो हमें वहाँ जो भी हम जा रहे हैं जिहाद में, जो भी हमें पहुँचेगी, वो इन 2 भलाइयों में से एक के सिवा और को तुम सोच भी क्या सकते हो? या तो हमें दुश्मनों पर फ़तह मिलेगी, या अल्लाह की राह में शहादत। और हम तो जो भी अगर शहादत मिली तो अल्लाह तबारक व तआला का वादा है कि सीधा वो जन्नत में लेके जाएगा, और हमें फ़तह मिली तो वो तो ज़ाहिर है कि वो तो फिर है ही, सबके सामने आज जो नज़र आने वाली भलाई है, उसमें माल गनीमत भी मिलेगा और फ़तह भी मिलेगी। तो उन 2 भलाइयों में से तुम्हें और क्या मिलेगी? तुम हमारे बारे में ये सोचते हो, अगर अल्लाह की राह में शहादत, और हम तुम्हारे बारे में इंतज़ार करो, हम भी तो इंतज़ार करें तुम्हारे बारे में। व नहनु नतरब्बसु बिकुम, हम तुम्हारे बारे में इंतज़ार कर रहे हैं, अन युसीबकुमुल्लाहु, कि अल्लाह तबा के वो अज़ाब दे, अल्लाह तुम्हें अज़ाब दे, किसी अज़ाब से भी, अज़ाबिन, अज़ाब के ज़रिए, यानी अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अपने पास से कोई अज़ाब पहुँचाए, मिन इंदिही, अपने पास से, औ बिअयदिया, हमारे हाथों से, यानी अल्लाह तबारक व या तो खुद अज़ाब दे, हमारे हाथों से तुम्हें अज़ाब पहुँचाए। अल्लाह तबारक हमारे हाथों से तुम्हें देगा तो वो भी तुम्हारे लिए मुश्किल ही होनी। फ़तरब्बसू व इन्ना मअकुम मुतरब्बसून, और तुम इंतज़ार करो, और बेशक हम भी तुम्हारे साथ मुंतज़िर हैं। इस तरह ये यानी कि ये होगा, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें कब अज़ाब दे, हम इंतज़ार कर रहे हैं, या हमारे हाथों तुम्हारा सफ़ाया करवा दे, इसलिए तुम भी इंतज़ार करो, हम इंतज़ार कर रहे हैं। अब करीब हम तुम्हारी खुशियों का मुशाहदा तुम हमारी खुशियों का मुशाहदा कर लोगे, हम तुम्हारे गम के किस्से इंशाअल्लाह ज़रूर सुन लेंगे। इसी तरह सैयदना सुहैब रज़ियल्लाहु तआला बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन की हालत पर ताज्जुब है, उसका हर मामला उसके लिए बेहतर है, और हर ये चीज़ सिवाय मोमिन के किसी और को हासिल नहीं। अगर खुशी हासिल होती है तो शुक्र अदा करता है और उसके लिए बेहतर है, और अगर उसे कोई दुःख पहुँचता है और तकलीफ़ पहुँचती है, तो सब्र करता है, ये भी उसके लिए बेहतर है कि वो सब्र का फिर अजर पाएगा। इसी तरह सैयदना अबू हुरैरा बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस चीज़ को ज़मानत दी है कि जो शख़्स मेरी राह में जिहाद के लिए निकले, इस हाल में कि उसे मुझ पर ईमान और मेरे रसूलों की तस्दीक की के अलावा किसी और चीज़ के लिए जिहाद से नहीं निकला, तो वो उसे अजर सवाब और गनीमत का वापस ले आऊँगा। अल्लाह तबारक व तआला के वादा है, उसने ज़मानत दी है कि वो उसे अजर सवाब और गनीमत के साथ वापस ले आऊँगा, या शहीद होने की सूरत में जन्नत में दाखिल कर दूँगा। तो ये 2 भलाइयाँ हैं, 2 भलाइयों में से एक उसे मिलनी है, या तो वो वापस लौटेगा फ़तह के साथ, तो उसको अल्लाह तबारक व तआला ले आएगा, अजर सवाब भी मिलेगा और गनीमत भी मिलेगी, या शहीद होगा तो उसे जन्नत मिल जाएगी। मगर काफ़िरों का क्या होगा? जब वो मरेंगे तो सीधे उन्होंने जहन्नुम में ही जाना है, जहन्नुम में घेर रखा है। जिस दिन मौत आई उस दिन सब कुछ यहीं रह जाएगा और सीधे जहन्नुम में
داخل کر دیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا ایمان اسے مضبوط کر دے کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، کوئی مصیبت کوئی مشکل اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور جو ہمیں ملتی ہے ہم اس پہ اترائے نہیں، یہ نہ سمجھیں کہ میرا بڑا کام کیا، میں بڑا قابل ہوں اور میری ایک قابلیت کی وجہ پر یا میرے منصوبہ کی وجہ پر مجھے اتنی چیزیں مل گئیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہے جو کسی کو دے دیتا ہے، کسی کو عنایت کر دیتا ہے، تو اس پہ اترانا بھی نہیں ہے اور زیادہ افسوس بھی نہیں کرنا۔ جو جو نہیں مل رہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے لکھی ہی نہیں، اس لیے ہمیں نہیں مل رہی، کہ جو چیز ہمیں نہیں مل رہی وہ سمجھو جو ہماری قسم تو تھی ہی نہیں، ورنہ یہ حسرت ہی ہے، جیسے کافروں کے لیے حسرت ہوتی ہے کہ جب پہلے ہم نے پڑھا ہے کہ جب وہ کسی سفر پہ گئے یا جنگ میں چلے موت آ پھر کہتے کاش یہ نہ جاتا تو یہ ہو جاتا، وہ تو ہونا ہی تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی اپنی جگہ پہ لے جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا ایمان پختہ کرے اور ہمیں صحیح قرآن سمجھنے کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پہ نظر کرم کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔